لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم اللهم صل على محمد العالمين المعصومين المستقيمين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هدينا السبيل إما شاكر وإما كفورا اللهم صل على محمد خاص ہے پانی مجلس کے مرحوم اس کے علاوہ اس زبان کے تمام روزگاری کے ہر طرح سے کیا ہے اور اس کے علاوہ وفاداری کی قابلیت جس نظام جس کی طرح سے اس اداکاری کو بقا کا سبب بنے تمام مرحومین نے اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ لہر قرآن کریم کا 76واں حصہ اور اس سورہ کو سورہ انسان اس سورہ کی ایک مختصر سی آیت تلاوت سابق حاصل کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار بندوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری میں ہی ہوں جو تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کروں گا، ہدایت کی سبیل کروں گا، ہدایت کے لیے نبی بھیجوں گا، ہدایت کے لیے رسول کو بھیجوں گا، ہدایت کے لیے آئمہ معصومین بھیجوں گا. یہ کام میرا ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، نہ تمہارا ہے. کام میرا ہے، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اگر تم اس ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ گے، اس ہدایت کو قبول کر لو گے، اس نور ہدایت سے اپنے قلب کو منور کر لو گے تو گزار بندوں میں شمار ہوگا. اور تم نے اس سے وابستگی نہ کی، اس ہدایت سے اپنے دامن کو بچا لیا تو تم قرآن نعمت کرو گے اور کافروں میں تمہارے ضرور کریں. آیت قرآن کی ہے، کلام اللہ کا ہے، زبان رسول کی ہے اور صداقت کے مہر لگی ہوئی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ. اور قرآن دیکھیے، قرآن کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن اس کے پڑھنے کے بعد دلوں میں نور پیدا ہو. وہ قرآن جو جس کو پڑھنے کے بعد تمہارے اخلاق میں زینت پیدا ہو. وہ قرآن جو تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. وہ قرآن جو تمہیں جنت سے وابستہ کرے گا. یہ فکرے میرے نہیں ہیں، آپ سبھی قرآن ختم کرتے ہیں تو ختم قرآن کی دعا ہے. اور یہ دعا اس کی بتائی ہوئی رسول اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ نے اپنے اصحاب میں بیٹھ کے بتایا کہ جب قرآن کی تلاوت قرآن مکمل ہو جائے تو اس دعا کی تعریف اور اس دعا کے ایک چھوٹی دعا ہے، ایک بڑی دعا ہے. اسی کے فکرے ہیں کہ اللہم قلوبنا نور قلوبنا بالقرآن، قرآن سے ہمارے دل کو کھول دو. اللہم مزین اخلاقنا بالقرآن، اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے اخلاق میں زینت پیدا کرو. اللہم نجات من النار بالقرآن، اس قرآن سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کرو اور اس قرآن کی تلاوت سے ہمیں جنت کے واسیوں میں شمار کرو. تو
वही कुरान ये कह रहा है कि हमने हिदायत की सबील, यानी हिदायत का जिम्मा मेरा है, मैं ही तुम्हारे लिए हादी भेजूंगा। वो हादी चाहे नबी की शक्ल में, वो हादी चाहे रसूल की शक्ल में, वो हादी चाहे उलुल अज़्म पैगंबर की शक्ल में, या वो हादी चाहे किसी और औलिया और वली की शक्ल में हो, काम हमारा है। तो अल्लाह कह रहा है कि हिदायत की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जब रसूलुल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल्लाह, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है, यानी कि हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह की है। और हुजूर ने ये बताया कि मेरा हुसैन भी हिदायत का चराग है, यानी अल्लाह की जिम्मेदारी कि अब हुसैन की हिदायत में और अल्लाह के हादी होने में एक निस्बत है, यानी कि जो हिदायत की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उसी हिदायत के सिलसिले की एक बड़ी का नाम हज़रत इमाम हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब देखिए हिदायत की जब सिलसिला किया तो बशरियत के लिए किया, इंसानियत की तरक्की के लिए किया, और उसके लिए हज़रत आदम से जो हिदायत का सिलसिला शुरू हुआ और वो खत्मुल अंबिया तक पहुँचा। तो इस दौर में जो 1.25 लाख तकरीबन नबी आए, अंबिया आए, रसूल आए, इसमें मुख्तलिफ़ किताबें आईं जो आसमान से नाज़िल हुई, मुख्तलिफ़ शरीयतें आईं, और उन तमाम शरीयतों का खुलासा अगर किया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं। मैं सिर्फ खुलासा की में बात नहीं है कि तमाम शरीयतें भी जो भी फिक्र थी, जितनी शरीयतें आए, जितना दीन कुल मिला के जो नबियों के जरिए आया, उनकी असास, उनकी बुनियाद 5 चीज़ों पर थी। उनकी बुनियाद, उनकी असास 5 चीज़ों पर थी। क्या थी 5 चीज़ें? वो हर दौर के नबी को आप खुलासा करेंगे तो यही चीज़ आप पाएंगे, चाहे वो हज़रत आदम की शरीयत हो, चाहे जनाब नूह की शरीयत हो, चाहे जनाब ईसा और मूसा की शरीयत हो। शरीयतें बदलती रहीं, किस एतबार से? इंसानों की अक्ल की मेराज की तरफ। जैसे जैसे अक्ल बढ़ती गई शरीयतों के तब्दील होती गई, लेकिन उसूलन असासी तौर पर ये 5 चीज़ें हर शरीयत में पाई जाती हैं। उनका ये खुलासा है कि सबसे पहले कि जो दीन का दुश्मन है, जो अल्लाह के अहकाम का दुश्मन है, वो जहन्नम है। पहली बात, दीन का जो दुश्मन है, जो दीन में दखल अंदाजी करे, अपनी कयास करे, अपनी अक्ल चलाए, वो ये कहे कि कुरान की आयतें माज़अल्लाह ऐसी हैं और 26 आयतों को निकाल दो, तो उनको मुर्तद कहा जाता है, वो वाजिबुल कत्ल है। यानी ये दीन के दुश्मन है, ये वाजिबुल कत्ल है और ये जहन्नमी है। आप पहुँच के कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो दीन का, पहले बात है जो दीन का दुश्मन है, जो दीन में कोई भी निफाक पैदा करना चाहता है, वो जहन्नमी है, पहली। दूसरी बात है कि अक्ल, जो अक्ल का दुश्मन है वो भी जहन्नमी है। अक्ल को यानी जो चीज़ें अक्ल को मुतासिर करती हैं वही चीज़ें शरीयत ने हराम की हैं। कोई भी नशा करने वाली चीज़ ही, शराब हराम है क्योंकि शराब से अक्ल मजबूर होती है और इंसान जो है वो गुमराह होता है, इसलिए वो हराम है। इसलिए जो अक्ल की दुश्मन वाली चीज़ें, जितनी भी मुंशियात हैं, जो नारकोटिक्स या ड्रग्स, तमाम तरह की तरह गाना, ये चीज़ें जो अक्ल को मफलूज करती हैं, इंसान की कुव्वतें इरादी पर असरअंदाज होती, इंसान सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता है। तो जो अक्ल की चीज़ें हैं, ये चीज़ों को हराम किया गया है, और जो अक्ल का दुश्मन है वो है जहन्नम। 2 बातें हैं, तमाम शरीयतों में कॉमन है। तीसरी बात है जान। अगर किसी ने किसी की जान ले ली बिला वजह, तो वो इंसान जहन्नमी है। इसीलिए कुरान भी ये कहता है कि अगर किसी ने बिला सबब किसी एक इंसान का कत्ल किया तो उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। कुरान का पैगाम है। तो जान का दुश्मन जो है, किसी ने जान किसी की जान ले ली तो वो भी जहन्नमी है, तो वो भी दीन का दुश्मन है। तीसरी बात। चौथी बात, किसी का माल, अगर माल आपने बिना इजाज़त के बदल कर लिया तो वो भी आप जहन्नमी हैं, क्योंकि आपने हुक्मुल इबाद में 2 तरह के हक़ हैं, एक आपके ऊपर अल्लाह का हक़ है, एक बंदे का। अगर किसी बंदे का माल आपने ले लिया बगैर उसकी इजाज़त से इस्तेमाल किया, किसी के घर में रह रहे हैं, किराए के मकान में किराया नहीं दे रहे और दिन रात नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक भी नमाज काबिल कबूल नहीं है, मुँह पे मार दी जाए, क्यों? क्योंकि दूसरे का माल आपने गल्त किया है, और ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है। हर शरीयत हर ये चीज़ कहती है। तो माल का दुश्मन भी जहन्नमी है। और चौथी बात और 5वीं और आखिरी बात है इज्जत नफ्स। किसी इंसान की इज्जत
ये नफ्स से खेलना, किसी की सरेआम बेइज्जती करना किसी को हक नहीं दिया गया है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो दीन का दुश्मन है और वो जहन्नम। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हजरत आदम की शरीयत में पाई जाती हैं, हजरत नूह की शरीयत, हजरत ईसा, हजरत मूसा से लेकर और हमारे नबी के दौर तक जितनी भी शरीयतें आई हैं उन सब में ये 5 बातें आम कॉमन पाई जाएंगी। क्या क्या? कि दीन का दुश्मन जहन्नमी, अक्ल का दुश्मन जहन्नमी, जान का दुश्मन जहन्नमी, माल का दुश्मन जहन्नमी और इंसान की इज्जत का जो दुश्मन है उसका ठिकाना जहन्नम है। उसका बोलिए कुल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें ये हर शरीयत में ये है। तो अब आप देखिए कि ये आपको एक पैरामीटर बता दिया गया कि हर शरीयत के लिहाज से ये चीज़ें आपको बता दी गई कि ये कौन कौन दुश्मन है। अब अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो वो किसका दुश्मन हुआ? वो किस दीन के खिलाफ हुआ? वो हुजूर के दीन के खिलाफ हुआ। कोई नमाज नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है, दूसरे का माल कर रहा है, तो उससे वो इस्लाम के दीन के खिलाफ नहीं है बल्कि हर शरीयत का मुजरिम है। हर शरीयत का मुजरिम। अगर हमने रोज़ा नहीं रखा तो इसका मतलब हमारे इस्लाम के गुनाहगार हुए और हमें उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर हमने किसी का कत्ल कर दिया तो हर शरीयत के हिसाब से हम कसूरवार हुए, मुजरिम हुए और हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। ये एक उसूल बता दिया गया है इंसानी हयात के लिए, ताकि मुआशरे में ये बुराइयाँ न फैले। और इन चीज़ों को अगर ख्याल करो तो तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। जब इंसान अच्छे बनोगे तो तुम इंसानियत की उससे फरोग पाएगी, इंसानियत की तरक्की होगी, मुआशरा खुशहाल बनेगा। दूर पौधे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हर शरीयत के हिसाब से ये 5 चीज़ें बता दी गई कि ये 5 उसूल हैं, इन उसूलों पर तुम्हें देखना है। अब हम ये कहते हैं इमाम हुसैन क्या है? अल्लाह की तरफ से हादी भेजे गए, रसूल ने बताया कि हिदायत है। इनके मुकाबले में कौन आया? इनके मुकाबले में आया यजीद। तो अब यजीद को हमें ये देखना है कि इन 5 पैरामीटर में से कितनों में उतरता है। एक उसूल बता दिया गया हज़रत आदम से लेकर आदम तक कि कौन कौन किस किस मेयार पर उतरेगा। अब आइए आप यजीद की कहानी सुनिए। तो यजीद के अगर आप देखेंगे उसकी तारीफ पढ़िए तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने दीन के खिलाफ फतवा दिया कि ये दीन जो दीन मोहम्मद हम कहते हैं, जो दीन इस्लाम है, इस तरह का कोई दीन नहीं है। कोई कुरान नहीं आई, किसी तरह की कोई वही नहीं आई। तो वो क्या कर रहा था? दीन में कयास कर रहा था। तो पहला रूल लगा उसने ये कहा कि कोई वही नहीं आई, कोई फरिश्ता नहीं वही लाता था, किसी तरह के नहीं, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है और इस तरह से इस्लाम दीन का कोई वजूद नहीं है। ये उसका पहला एतराज़ था। इसका मतलब उसने दीन के खिलाफ किया तो उसका ठिकाना कहाँ होना चाहिए? जहन्नम। वो इंसानियत का दुश्मन हुआ। और हर शरीयत के तरह से वो सिर्फ जनाब पैगंबर की शरीयत का नहीं बल्कि हज़रत आदम से लेकर खातम तक हर शरीयत का गुनाहगार हुआ, हर शरीयत का मुजरिम हुआ, हर शरीयत के हिसाब से उसका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और तवज्जो से सुनिएगा, आपको किसी मकाम पर नहीं आता है। हम एक सवाल हमारे जहन में, हमारे बच्चे छूटे जाते हैं कि इमाम हुसैन को कहा जाता है, इमाम हुसैन के अलकाब में से कहा जाता है इमाम हुसैन वारिस अंबिया हैं। कहते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ज़ियारत में सलाम अलैहि हमारा साहब मतलब आदम के वारिस, नूह के वारिस। इसी बात को बयान किया जा रहा है कि इमाम हुसैन किस तरह से वारिस। तो पहली चीज़ ये कि उसने वो दीन में उसने दखल अंदाजी की, कयास हुआ, इसलिए वो दीन का दुश्मन। दूसरी बात, वो अक्ल का दुश्मन क्योंकि जिस वक्त इमाम हुसैन को शहीद करके और जब उसके दरबार में इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन का सर लेके पहुँचा तो वो शराब पिए हुए तख्त पर बैठा था। सुन्नी शिया हर किताब ने, हर मकतलनामे ने ये लिखा, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो शराब पीता था और शराब पिए बैठा। यानी अब दूसरी बात कि वो अक्ल का दुश्मन हुआ क्योंकि शराब नोशी का था। तो अक्ल का दुश्मन हुआ तो उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो हर शरीयत के एतबार से वो एक मुजरिम भी है, गुनाहगार भी है और उसका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए जिस वक्त पहुंचा। दूसरी बात, तीसरा बात, उसने इमाम हुसैन का कत्ल कराया क्योंकि एक नफ्स का कत्ल कराया। तो इसका मतलब वो हर शरीयत, सिर्फ शरीयत मोहम्मदी का नहीं बल्कि हर शरीयत के एतबार से वो
मुजरिम भी है, गुनाहगार भी और ठिकाना जहन्नुम भी है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया तो उनके खैमे को लूटा गया, सारा माल और बाप लूटा। तो क्योंकि माल दूसरे का उसने लूटा, तो इसकी वजह से वो हज़रत आदम से लेकर हज़रत आदम तक के हर शरीयत का गुनाहगार भी है, मुजरिम भी है और जहन्नुमी भी हुआ उस पैरामीटर के हिसाब से। और उसके बाद ये 4 बातें हो, यानी दीन का दुश्मन हो गया, उसने वही से इनकार किया, कुरान से इनकार किया। अक्ल का दुश्मन हो गया क्योंकि वो शराब नोशी करता था। जान का दुश्मन इमाम हुसैन के कत्ल का पूरा मंसूबा उसने बनाया। और माल का दुश्मन इमाम हुसैन के कत्ल के बाद उनका माल और बाप को लूटा, माल का दुश्मन हुआ। और इज्जत नफ्स हुआ कि इमाम हुसैन के कत्ल के बाद रसूल के घराने की बीवियों को बाजार में ले जाते और उनको कैदी बना के बाजार बनाए, यानी आपने दूसरे की बेहुरमती बेइज्जती की, दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। यानी 5वीं बात जो थी कि इज्जत नफ्स का भी वो दुश्मन निकला, उसके लिहाज से भी वो गुनाहगार भी हुआ, वो मुजरिम भी हुआ। तो ये 5 पैरामीटर में अगर आप देखें तो हर पैरामीटर के हिसाब से यजीद का किरदार आपको समझ में आ जाएगा। अब यजीद इमाम हुसैन ने उसके खिलाफ क़याम किया, उसको रोका इन सब चीज़ों करने से। तो अब इमाम हुसैन ने सिर्फ हुजूर की शरीयत को नहीं बचाया, वो हज़रत आदम की शरीयत को बचा रहे, हज़रत नूह की शरीयत को बचा रहे, हज़रत ईसा की शरीयत को बचा रहे, हज़रत मूसा की शरीयत को बचा रहे। तभी तो कहा जा रहा है कि हुसैन वारिस अंबिया हैं। तो जब क़याम कर लिया तो आज इमाम हुसैन के रोज़े पे हर शब जुमा आदम भी आके कह रहे हैं अबू अब्दुल्ला आप पर हमारा सलाम, नूह आके सलाम कर रहे हैं रोज़े पे, है अबू अब्दुल्ला आप पर हमारा सलाम, इब्राहिम आके सलाम कर रहे हैं अबू अब्दुल्ला आप पर हमारा सलाम। तो क्योंकि एक उस शख्स को हर शरीयत के दोषी को, मुजरिम को, गुनाहगार को बेनकाब कर दिया और शरीयतों को बचाया, जो अव्वल से आखिर जितनी भी हिदायत की सबीलें थी, हर सबीलों की हिफाजत करने वाले का नाम हज़रत अबू अब्दुल्ला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसलिए उनको वारिसे अंबिया कहा जाता है। दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन वारिसे अंबिया किस वजह से? तो आप देखें कि इमाम हुसैन आज हम जो पढ़ रहे हैं अस्सलाम अलैका या वारिसा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैका या वारिसा इब्राहिम खलीलुल्लाह, हर नबी के वारिस इमाम हुसैन क्यों है? क्योंकि हर नबी आकर कह रहे हैं आए हुसैन आप ना होते तो हमारी शरीयत बेईमान हो जाती, नूह कह रहे हैं हमारी आए हुसैन आप ना होते तो हमारी शरीयत बेईमान हो जाती, इब्राहिम कह रहे हैं आप ना होते तो हमारी शरीयत। हर नबी आकर शुक्रगुजार है क्या? और उसके बाद क्योंकि ये सारी शरीयत किस लिए थी? इंसानियत की बका के लिए थी, इसीलिए इमाम हुसैन को मोहसिन इंसानियत की कहा है। इमाम हुसैन का दूसरा नाम मोहसिन इंसानियत है, इंसानियत को बचाने का काम इमाम हुसैन ने किया। अगर वो क़याम न करते उस वक्त तो न जाने कौन कौन सी चीज़ें दीन से रुखसत हो जाती, जो चीज़ें बिदअतें थी, जो शिर्क था वो दीन में शामिल हो जाता। आदम से लेकर खातम तक हर नबी शर्मसार होता, लेकिन उस शर्मसारी से बचाने वाले हज़रत इमाम हुसैन है, जो आज हर अंबिया फख्र से कहता है हुसैन मेरे वारिस, हुसैन मेरे वारिस, हुसैन मेरी शरीयत बचाने वाले, हुसैन मेरी शरीयत बचाने वाले। इसलिए कहा गया इमाम हुसैन वारिस अंबिया। दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाकिर की सलवात पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि अब इमाम हुसैन ने हर शरीयत को बचाया, हर नबी के मिशन को बचाने का काम किया। तो अब काम किसका था? नबी का। नबी किसने भेजे? अल्लाह ने भेजे। हिदायत का जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है। उस हिदायत के सिलसिले और सबील और उसके मिशन और हिदायत के पैगाम को बचाने का काम किसने किया? हज़रत इमाम हुसैन ने। तो अब कल आप सामने पढ़ा था हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तो एहसान का बदला क्या होना चाहिए? इमाम हुसैन ने आदम से लेकर 1.25 लाख नबियों पर एहसान किया, उनकी शरीयतें बचाई। तो अल्लाह ने कहा नबी हमारे थे, मिशन हमारा था, पैगाम हमारा लेके गए थे, नबी हादी हमारे थे। ए हुसैन आपने इनकी शरीयत बचाई, आपने इनके पैगाम की हिफाजत की, तो आप जजा इनसे न लीजिए, जजा हम देंगे। सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदाबाद हम करेंगे। हर गली हर कूचा सरहदों के भी कैद नहीं होगी, हर मुल्क में ये हुसैन जिंदाबाद,
اور یہ جو ذکر حسین آج چڑھا ہوا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ وعدہ اللہ کا ہے، کسی بشر میں یہ کمال نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ 1400 سال سے عزاداری اس طرح سے ہوتی رہے اور نہ رکے اور ہر سال بڑھتی جائے، کیونکہ یہ کام اللہ کا کام ہے۔ درود کیونکہ یہ عزاداری اللہ کی قدرت اور اس کے حکمت سے جاری ہے، اس لیے کبھی بھی کسی عزادار کو یہ نہ گمان ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں تو عزاداری ہو رہی، ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں تو عزاداری قائم ہے، ہم تعزیہ سجا رہے ہیں تو عزاداری قائم ہے، ہم نے مرثیہ پڑھ لیا تو نہیں، ان سب کی وجہ سے اس عزاداری سے ہم قائم ہیں۔ یہ عزاداری ہے تو ہمارا وجود ہے، یہ عزاداری ہے تو ہم اس لائق کو عطا کر رہے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں، یہ عزاداری ہے کہ وہ عطا کر رہے ہیں کہ ہم نوحہ کے ذریعے کر سکیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ وہ عطا کر رہا ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں۔ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم فرش عذاب اٹھاؤ تو کبھی فخر نہ کرو بلکہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ توفیق دی کہ تم اس مشن کا حصہ ہو جو اللہ کا مشن ہے۔ اللہ نے اپنے مشن میں تم کو شامل کیا۔ دیکھیے اللہ جو ہے کبھی غریبوں کو بھیجتا ہے، سائلوں کو آپ کے دروازے پہ، جو کہ اللہ اس کو نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو دولت دے کے اپنا امین بنایا اور اپنے عیال، یہ ہماری جو عوام ہے، امت ہے، عیال ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، ہم تمہارے ہاتھ سے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم کو اپنے ثواب میں بھی شامل کر لیں اور تم کو ہم اپنے کار میں شامل کر لیں۔ میں چاہتا تو کسی کو بھی دے سکتا، اللہ کی بس ہر طرح سے عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن سائل کو تمہارے دروازے پہ بیٹھ کے وہ تم کو یہ موقع دے رہا ہے، تم کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ تم سخاوت کر کے، تم کرم کر کے، تم عطا کر کے ثواب بھی مستحق ہو جائے تاکہ ہم تمہارے لیے جنت میں اپنا مقام پیدا کریں۔ اسی طرح سے عزاداری کو چاہتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں عزاداری سے فرش پہ ہوتی ہے، اس جتنی عزاداری فرش پہ ہوتی ہے اس سے زیادہ عرش پہ، آسمانوں پر فرشتے سے زیادہ ادا کرتی ہے۔ اس کے عزاداری کے لیے وہ فرشتے اور جن و ملائک عہدے کرنے کے لیے یہ شکر ادا کرے عزادار، پروردگار نے اس کا انتخاب کیا کہ تم کو تم فرش عزا توفیق عطا کی کہ تم فرش عزا بٹھا کے اور تم ذکر حسین کر سکو، اور جب اللہ نے یہ توفیق دی کہ تم فرش عزا بجا سکے تو پھر معصومین نے اور حضور نے کہا کہ تم فرشے بچاؤ، اللہ نے تمہیں توفیق دی فرش سے بات آئے گی، ہم یہ کریں کرم کریں گے، ہم اس فرش بزا پہ آ کے تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اس سے توفیق دی کہ رضا کا حصہ بن جائیں، اور معصومین کا کرم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس فرش عزا پہ ہم تمہارے بغل کی ہوں، تمہارے بغل میں آ کے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ عزاداری آفاقی نظام ہے، یہ الہی نظام ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ ہم نہ ہوں گے تو عزاداری نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں نجم آفندی نے کہا تھا کہ دنیا یہ نہ ہوگی تو اسلام نہ ہوگا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ کوئی تو آپ کہہ رہے کہ کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے، پروردگار کا نظام ہے، اور یہ فرش عزا بچھانے کی سعادت ملی ہے، یہ فرش عزا نجات کا صاحب ہے، یہ فرش عزا ثواب کا حامل ہے، یہ فرش عزا بیٹھ کے کردار سمجھتے ہیں، یہ فرش عزا کے قرآن و حدیث کی معلومات ہوتی ہے، یہ فرش عزا وسیلہ بنتا ہے اللہ کی معرفت میں اضافہ کرنے کا، یہ فرش عزا وسیلہ بنتا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے پیغمبر کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کے فرمان کو سمجھ سکیں۔ تو یہ تمام فرش عزا ہے، اس لیے اس فرش عزا کی آپ کو قدر کرنی ہے اور ہمیں اس بچانا بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے منبر، اپنے مجلسوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ الہی نظام کا حصہ ہے۔ درود پڑھیں۔ اور یہ عزاداری جب ہوتی جہاں تعزیے پڑھنا ہے، اس تعزیے کے ساتھ ساتھ ایک علم بھی سجایا ہے، کیونکہ وہ تعزیہ، وہ علم، امام حسین کی عزاداری اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک تعزیے کے ساتھ علم تک۔ ہر جلوس میں آپ دیکھیں کہ تعزیے کے ساتھ علم ہوتا ہے، جو علم اور علم پہ بنا ہوا پنجہ اس فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ یہی وہ ہاتھ تھا، یہی جس کو بیعت کے لیے مانگا گیا تھا، وہ ہاتھ آج بھی بلند ہے، سر تو پھٹ گیا لیکن وہ ہاتھ بیعت نہ ہوئی،
बायत अलम में हाथ बुलंद करके बन जा, हम बताते हैं कि हमें फतेह नसीब हुई है। और ये अलम इस बात का निशान है कि आज भी वो हाथ बुलंद है जो आज की जीत मांग रहा था। हमने गला कटा दिया, लेकिन हमने अपने हाथ उठाया, हमने अपने घर को कुर्बान कर दिया, मगर हमने उस हाथ पर बैत नहीं की जो फासिक का हाथ था, जो मुजरिम का हाथ था, जो गुनहगार का हाथ था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज की तारीख मंसूब है उस अलमदार से जो करबला के शहीदों में 72 शहीद हैं, लेकिन उसका एक अजब और एक अहम मुकाम है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन के भाई और जिसने हर रिश्ते को एक कमाल तक पहुंचा, भाई का रिश्ता वफादारी की कमाल तक, मेराज तक पहुंच गया कि आज तक जब इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास का जिक्र आता है, कोई कमतर से कमतर जहन भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता है कि इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास सगे भाई नहीं। ये कमाल था इमाम हज़रत अब्बास की वफादारी का, उनकी इताअत का, जो मारिफत इमाम थी, जो उनके और ये मारिफत इमाम उनको अता की थी उनकी वालिद गिरामी। बचपन से ये था, बाप ने इसलिए मांगा कि हमें तुम्हें करबला में हमारे हुसैन को हासिल है, और माँ ने तरबियत इस तरह की कि देखो इसको कभी भाई ना देना, ये आका है, ये वक्त इमाम है, तुम्हें इनकी नुसरत करनी है, तुम गुलाम हो, तुम्हारे आका है। और यही जज्बा है कि हज़रत अब्बास जवान हुए, और उसके बाद जब जिस वक्त इमाम हुसैन का लश्कर सूबे के करीब था और गुर के लश्कर ने आके रोका है, और गुर ने आके कहा, लजा में फरस पे हाथ डाल दिया कि आप हमें कासिद का हुक्म है कि आप यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, जिस मुकाम पर आप मिले आपको गिरफ्तार करके यजीद तक पहुँचाना है। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा कि ऐ गुर, तेरी माँ तेरे शोक में बैठे, और जो अरब का बहुत ही ज़बरदस्त जाबाज और बहादुर का अपने मशहूर था, उसने कहा कि ऐ इमाम हुसैन, आपके अलावा अगर किसी ने ये फकरा कहा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि आपने तो मेरी माँ कह दिया, मैं तो आपकी माँ को नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी माँ वो है जिसकी ताज़ीम में हमारे नबी खुद से खड़े हो जाया। यही वो जिम्मेदारी थी जो इमाम हुसैन जनाब के दिल में थी। और जिस वक्त जनाब पर चाट डाला है, हज़रत अब्बास दौड़ के आए हैं, न्याम से तलवार निकाली और कहा कि अरे गुर, एक लफ्ज़ भी अगर निकला हमारी ज़बान काट के वक्त खत्म हो गया। ये जज्बा था। इमाम हुसैन करबला के मैदान में हज़रत अब्बास के साथ है। इमाम हुसैन को भी ये मालूम है कि ये आशूर के लिए हमको मिला है। हज़रत अब्बास भी ये जानते हैं कि हमारी खिलकत हमारे उनको दुआ में मांगा गया इस दिन के लिए, और सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि हमको आका इमाम हुसैन इजाज़त दे। इजाज़त नहीं मिल रही है, परेशान है, ज़हनी उलझन में है कि हमको तो इसी दिन के लिए खत्म किया गया है। मेरे बाबा ने अपनी रात की दुआओं में, अपने शबे नमाज शब की दुआओं में हमको मांगा था कि मेरे हुसैन की नुसरत के लिए करबला में शादी चाहिए, भाई चाहिए। और ये सुबह से आज दोपहर होगी, जब भी कोई शहीद जाने के लिए होता है, हज़रत पास पहुँच जाते हैं, आका मरने की इजाज़त दे दिए। इमाम हुसैन के मना कर देते हैं, तुमको इजाज़त मेरे लश्कर के लगता, तुमको कैसे इजाज़त देते हैं? हर बार वापस हज़रत अब्बास मायूस है, जहन में बस ये कि मुझे तो इसी दिन के लिए खल किया गया है और मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है। खैमे के दर पे आके बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी है, जहन में सवाल है कि आखिर क्यों करके मैं कुर्बान हो सकता हूँ, क्यों कर मैं अपने आका पर नुसरत का ऐलान कर सकूँ। बस अचानक पीछे खैमे से किसी नन्ही सी बच्ची की रोने की आवाज़ आई, ऐ भूखी अम्मा, मेरा बचपन का सूखा है, मैं तो बहुत प्यासी हूँ, और मेरा आप देखिए मेरे भाई अली अब्दुल्ला का गला भी बहुत सूखा है, उसके कोट खंपाए में बस ये आवाज़ सुनी हज़रत अब्बास ने, और उसके बाद उनकी आंखों में एक रोशनी पहुंच गई, जैसे उनको कोई नुस्खा मिल गया, कोई तरीका मिल गया नुस्खा करने का। बस हज़रत सकीना के पास आए और कहा,
اے بیوی آپ اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لا کے مجھے دیں۔ جناب سکینہ مشکیزہ لے کے آئی اور آپ نے اپنی انگلی پکڑی سکینہ کی اور کہا کہ اپنے بابا کے پاس بس چل کے کہہ دیجئے کہ ابو کو پانی ڈالنے کی اجازت دے دو۔ سکینہ کو لے کے آئی، وہ سکینہ کے ساتھ عباس کو دیکھا، امام عالم الغیب کو جاننے والا سمجھ عباس، میں سمجھ گیا کہ سکینہ کے ساتھ کی بات ہے، لیکن تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو اس بچوں کے لیے پیاس کا انتظام کر دو، ذرا فرات سے پانی لا دو، خیموں میں ایک بوند پانی نہیں ہے، بچے اللہ تش کر رہے ہیں، اے عباس سکینہ کی پیاس بجھا دو، اے عباس علی اصغر کے لیے پانی مہیا کر دو۔ بس یہ کرنا تھا، اس کے بعد چاہتے ہیں کہ امام سے مل کر رخصت ہو، اس کا رخصت ہونے کی وجہ ایک بار کہا کہ عباس اس ذوالفقار کو لگو نیزہ ہاتھ میں لے لو، میں جنگ کی اجازت نہیں۔ وہ جری سوکھے مسجد سے لے کر آیا، نیزے کو لے کے فرات 4000 کا لشکر فرات میں قبضہ کیے ہوئے، ایک بوند دریا کا پانی امام حسین کے خیمے ان کے بچوں کو۔ اب کہا کہ دیکھا کہ ایک جری آ رہا ہے، گھوڑے پہ سوار بلند قامت اور جس کے ہاتھوں میں ایک علم ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، دانتوں سے مشکیزے کو پکڑے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ حملہ کیا جری نے کہ فوجیں 4000 کا لشکر فرات کو ساحل چھوڑ کر بھاگا۔ عباس نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور کہا کہ اے بابا، اے میرے گھوڑے، اے میرے رہبر، تو صبح سے میرے ساتھ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، تو چاہے تو پانی پی لے۔ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو آئے، خیمے کی طرف منہ کیا، شاید بے زبانی میں کہہ رہا آقا آپ کی اور میرے آقا امام حسین کے بچے پاسے ہیں، میں کیسے اس دریا کو اپنا منہ لگا لوں۔ امام صاحب حضرت عباس نے پانی کو چلے دیا، ایک بار چلے میں دریا فرات کا پانی لے کے دیکھا یہی وہ پانی ہے جو میرے آقا کے خیموں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اسی پانی کے لیے سکینہ پیاسی، اسی پانی کے لیے علی اصغر کا گھوٹ پکڑائے ہوئے ہیں۔ چاہے ہو سکتا ہے کہ جناب سکینہ کی تصویر لگا آئی ہو، بدتاق فرات کے اوپر پانی مارا، فرات سے کچھ مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھر کے پھڑتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اب جلد سے جلد خیمے تک پہنچیں اور امام حسین کے بچوں کو پانی پہنچا دیں۔ نگران گرامی ادھر ابن زیاد کہتا ہے بھاگے ہوئے پہنچو واپس آؤ، اگر ایک بوند امام حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو میں تم سب کو واصل جنت کر دوں گا، کسی کو نہ بخشوں گا۔ باہر نیل پڑھ کے واپس آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے ایک ساتھ میں حملہ کرنا شروع کیا۔ اب جری کا دھیان حملے پہ گئی، جری چاہتا ہے کہ یہ پانی کا مشکیزہ امام حسین کی بچی سکینہ تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ سامنے سے آ کے حملہ کرو تو جیت نہیں پاؤ گے، پیچھے سے آگے پھٹ سے حملہ کرو، ارے یہ علی کا بیٹا ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اس سے جیت نہ پاؤ گے۔ پیچھے سے سکینہ آ کے جو وار کیا، تو وار اس نے سر پہ کیا تھا، سر کا وار پتہ ہوا اور ہاتھ پہ پڑا، حضرت عباس کا دائنا اب دادو قلم ہو گیا، نیزہ گر گیا، ایک ہاتھ میں علم ہے، دانتوں میں مشکیزہ ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جلد سے جلد خیام حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسی سبھی نے وار کیا، دوسرا بازو دونوں بازو قلم ہو گئے، دانتوں میں مشکیزہ ہے، اب ایڑ لگا کے حضرت خیام حسینی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ تیر بھال کا تیر اور ملا کا تیر چلا، مشل چھڑی، مشل جو چھڑی تو پانی بہنا شروع ہوا۔ حضرت عباس کی مایوسی ہو گئی، یہ پانی سکینہ تک نہ پہنچ پائے گا، چنانچہ اب وہ بہت خیام کا رخ موڑا، واپس نہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اے آقا آپ تو خیام میں جانا چاہتے تھے، کہا شاید جب آپ نے جانا تو چاہتا تھا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی کا، اب مشق تو چھن گئی، پانی بہ گیا، کس منہ سے سکینہ کے پاس جاؤں، پر کسی نے سر پہ بجھ مارا، حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گرے۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید، کوئی زخمی سپاہی، کوئی مجاہد جنگ کے میدان میں زخمی ہونے کے بعد جب گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ کے بل گرتا ہے، لیکن ہائے غریب العباس جس کو زمین پہ آئے ہیں
دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، جو کر کے زمین پہ آتے، ادھر زمین پر آ رہے ہیں، ادھر اپنے بھائی کو آواز دی، اے آقا ہماری مدد کیوں آئے.